ادھر تھوڑا مذاق انٹرویو کرتے ہیں, تھوڑا مذاق وذاق کر لیتے ہیں تو. ہاں چلو آپ کریے, اسپیکر کے ساتھ آج مذاق نہیں. چلو آپ کرو. ولاگ نہیں بناتے, تھوڑا سا کر لیتے ہیں. وہ نہیں چلے گا اس کرسی پہ. یس سر. بی سیریس. اور زیادہ سے زیادہ دیکھیے, میں نے کچھ ہسٹوریکل باتیں بتائی, کچھ پرسنل باتیں بتائی, ان مذاق جو بھی سے کیا میرے ساتھ اور 36% ووٹ پڑے. 36% بھی میں بھی جیت گیا. اگر 1000 بھی پڑتا اس میں بھی میں ہی جیتا. 100 پڑتا, 1000 نہیں پڑتا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی اور نئی جنریشن میں ایک گیپ آیا ہے, بہت گیپ آیا, اس کو برج اپ کرنا ہے. کہ میں تو ابھی پرانے جنریشن کو ان بٹوین میں پھنسا ہوں. تو یہ کہنے کہ مجھے یہ بیچ میں ہے کلاڑی ڈالی میرے اوپر. پھر سے جہاں سے میرے علاقے تھے وہ بھی کاٹے, جہاں سے میں لیڈ کرتا تھا. وہاں جو میں لیڈ کرتا تھا میرے نواب بازار جو میرا ہمسائے, وہ تو میں کہ نواب بازار شامان وہ بھی کاٹا, دلال بالا کاٹا, جمالاٹا کاٹا, نوالی مسجد جو میرے جو فیوریٹ علاقے. یا میں نے 4-5 میرج آدمی. آپ کے حساب سے کشمیر کے فیوچر کے لیے پیس ڈیولپمنٹ میجر ضروری ہے یا امپلائمنٹ جنریشن؟ لیکن انچا جو ہے اس کا الگ ہی مزہ ہے. میں نمک کم ڈالتا ہوں تو مزہ آئے گا. یہ 4-5 دن کی بات ہے جب میں ادھر آ گیا. کہ آپ کا فیڈ بیک کیسا اس کیمرہ میں دیکھ کے آپ کا فیڈ بیک کیسا رہا؟ چاہیے وہ بہت اچھا ہے. ریسرچ کرتے ہیں, اسے گوگل سے بھی لیا ہے, میرے جو یہاں کتاب ہے اس میں بھی دیا ہے. سارے کوشچن کو پتہ تھے مجھے کیا کہنا ہے, لیکن نالج ان کا کافی ہے. میں یہ دعا کروں گی آج گل 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 بدین مبارک گل. میری چٹھیاں موجود تھی لیکن بدقسمتی سے سیلاب آ گیا, میرا مکان ہی ڈوب گیا سیلاب. مطلب کہاں نیوز چینل سر یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں. اچھا ایسے بولو نا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں. نیوز چینل ہی چلا رہے ہیں لیکن یوٹیوب پہ چلا رہے ہیں. یہ بات ہے. کہاں سے انٹرویو کہاں سے مبارک صاحب کہاں سے جانا؟ یوٹیوبروں کو عزت ملنے لگی ہے, وہی بڑی I, Dr. Narinder Singh Raina, having been elected as a member of Legislative Assembly of Union Territory of Jammu and Kashmir, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. سر تصدق نام ہے ہمارا. بہت اچھا. انٹرویو کرتے ہیں سر, پولیٹیشینس کا انٹرویو کرتے ہیں. اچھا جی, ادھر تھوڑا مذاق انٹرویو کرتے ہیں, تھوڑا مذاق وذاق کر لیتے ہیں تو. ہاں چلو آپ کریے, اسپیکر کے ساتھ آج مذاق نہیں. چلو آپ کرو. ولاگ نہیں بناتے, تھوڑا سا کر لیتے ہیں. وہ نہیں چلے گا اس کرسی پہ. یس سر. بی سیریس. ضرور تھوڑا سا تو بی سیریس تھوڑا سا. یہ تو آئی تقدس ہے اس کرسی کا. یس سر. یہ جو ہے اس میں تو مذاق تو نہیں ہے, یہ تو ایک آئینی اور ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے. یہ of course there are lot of limitations and can't say all the things to you, yes, but you can have. But what we do is we don't do formal interviews, we do a little bit casual. Yes. ہم سیاسی سوال اتنے پوچھتے نہیں ہیں, تھوڑا ایسے آپ کی لائف میں سوال نہیں اسٹارٹ ہو گیا, ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. تو سر ابھی آپ پروٹیم اسپیکر ہیں جی, تو آپ کو پتہ ہے گوگل کو میننگ نہیں پتہ ہے پروٹیم اسپیکر کا؟ نہیں پتہ ہے. گوگل پہ سرچ کرتے ہیں پروٹیم اسپیکر کو نہیں پتہ ہے. ایکچولی یہ ہے کہ اس میں ہوتا ہے یہ لمیٹیڈ رول ہوتا ہے پروٹیم اسپیکر کا. یہ جو سینئر موسٹ جو ممبر ہوتا ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ جس کو زیادہ ٹائم ہو اس میں لیجسلیچر میں, اور اس کو پروٹیم اسپیکر بنا دیتے ہیں اور وہ دلاتا ہے پھر. جی
ऑनरेबल मेंबर उसको इलेक्टेड इलेक्टेड, और उसको जो है उसको जो प्रोटेम स्पीकर को स्टेट में गवर्नर साहब देते हैं, नॉमिनेट करते हैं ना, वो दिलाते हैं, हाँ, जो nominate गवर्नर करते ऑफिस हैं, में और उसमें वो ढूंढते हैं कि सीनियर मोस्ट कौन सा है, पैनल ऑफ दिस जो होंगे उनको मांगते हैं, वो पैनल गवर्नमेंट मांगती है, फिर गवर्नमेंट देती है वहाँ भेजती है, या गवर्नर साहब हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो, तो वहाँ से वो एग्जामिन करते हैं कि क्या कौन सीनियर है, वो देखते हैं, हर तरीके से देखते हैं, सारे एक्सपेक्ट्स को और कोई इनजस्टिस नहीं करना चाहते हैं और दे देते हैं। उसका लिमिटेड रोल होता है, फिर उसको वो दिलाना होता है ऑनरेबल मेंबर्स को, तो फिर चल पड़ती है असेंबली। तो जब मैं आपके बारे में स्टडी कर रहा था, थोड़ी बहुत की मैंने, तो मैंने देखा कि आप असल में हबा के दिल से, हाँ, बट मैं आप इलेक्शन लड़, एक्चुअली ये जब मैं इसमें 87 में मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, डिलिमिटेशन हो गई, जो मैं वोटर था उसको काटा गया, मुझे समझ नहीं रहा वो क्यों काटा गया। वो इलाके थे मेरा जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मेरे अपने 2-3 हज़ार वोट भी हैं, जो माला मेरा है, मेरा शाहमाला। और उसके बाद मेरे साथ था छजबल का इलाका, वहाँ मैंने काम किया था। छजबल के लोगों को 83 से कहाँ याद रहेगा, वो आज कह गए, जो कुछ दिनों की, कुछ सालों की वो असेंबली थी, वो कट गए जी, वो एरिया कट गए डिलिमिटेशन, वो पार्ट ऑफ ईदगाह थे वो, ओके। लेकिन उन्होंने कोई मेरे से मशवरा नहीं किया कि मैं तो अपर हाउस का मेंबर था उस वक्त, शायद वो जो मेंबर था वहाँ का ईदगाह का, शायद उसको शूट हो गया कि मैं कुछ इलाके काट के, वोट शायद नहीं होंगे वहाँ पे, उसने डाल दिया, छजबाल ले लिया खाजिद बेदी शाह साहब ने, और ये शाहमाला रख लिया हुंडू साहब ने, और ये नवाब बाज़ार वो जो दूसरा इलाका वो लिया, उसने डाला नवाब बाज़ार, शफीक खान साहब उधर का रहने वाला, उसने डाला ईदगाह में। लेकिन अल्लाह का कुछ ही फैसले होते हैं, इसी नहीं होता है कि वो काटेंगे। लेकिन अब इस बार फिर कुलाड़ी डाली मेरे ऊपर, फिर से जहाँ से मेरे इलाके थे वो भी काटे, जहाँ से मैं लीड करता था। खैर वहाँ जब मैं लीड करता था, मेरे नवाब बाज़ार जो मेरा हमसाय, वो तो मैं कि नवाब बाज़ार शामिल, वो भी काटा, दलाल बाला काटा, जमालटा काटा, नवाली मस्जिद, जो मेरे जो फेवरेट इलाके, जहाँ मैंने 4-5 मैरिज हॉल भी बनाए, जहाँ मैंने काम भी किया, जहाँ मैंने ये तो हर जगह कोचे वगैरह, ड्रेनेज, ब्यूटिफिकेशन। अब देखो दरख्त भी लगे हैं उस सड़क पे, जमालटा सड़क पे, लेकिन उसको काटा, अगर किसको और दे दिया। अब मैं 26 में फिर हो रहा है ये डिलिमिटेशन, अब नई कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बन जाएंगी आगे, पता नहीं कौन कहाँ जुड़ेगा, कौन कहाँ कटेगा। ये एक्चुअली ये हबा का बाद में बना, पहले ये ईदगाही था, मैं ईदगाही का हूँ, लेकिन अब इसको काटा गया। मेरे पास कुछ सीरियस सवाल है जी, मैं देख रहा हूँ कि कब डालूं, तो अगर आप चाहें करो कोई। आप कहवा पसंद करते हैं नून चाय? ज़्यादा मैं नून चाय पीता हूँ, कहवा भी कभी कभी पीता हूँ, लेकिन नून चाय जो है उसमें अलग ही मज़ा है। मैं नमक कम डालता हूँ, मेरे घर वालों को बोला है कि नमक कम डालो, लेकिन मुझे पिछले दिन में आया 2-3 बार घर से ही है, कभी मेरे मुँह से आप झूठ नहीं सुनोगे। मैं गया पिछले दिन घर, तो मैंने कहा थोकू सास में तो चाय दामा, तो उन्होंने कहा मुझे दी लिप्टन चाय, लिप्टन चाय के साथ दिया कुछ मुझे पर वो कश्मीरी सचूर। मैंने कहा ये कौन सी कॉम्बिनेशन, ऐसा होता है, सचूर है ना कश्मीरी, वो दिया। मैंने कहा ये नहीं है, इसके साथ क्या खाऊंगा मैं सचूर के साथ, मुझे नून चाय दिया करो, जब मैं आऊँगा ऑफिस से मुझे नून चाय दिया करो, और ये सचूर उसके साथ बटर लगा के, तो मज़ा आएगा। ये 4-5 दिन की बात है जब मैं इधर आ गया। वो अब मैं जाता हूँ तो उन्हें नमकीन चाय रहती है तैयार, ये है मैं नमाज पढ़ता हूँ, फिर नमकीन चाय पीता हूँ। ये है भी कश्मीरी का नून चाय के बगैर स्टार्ट दिन ही नहीं होता है। एक्चुअली है ना, थोड़ा ये हमारे ये जो ज़रूरी है, नमक भी ज़रूरी, सरद इलाका है यहाँ, ये भी मीट भी ज़रूरी है, दाल भी ज़रूरी है, प्रोटीन ज़रूरी है। अब तो ये हमाम शमाम आ गए, एसी वेसी आ गए, लेकिन
पुराने ज़माने में जो ये वाजवान है ये भी उन्होंने इजाद किया पुराने लोगों किसी पर्पस के लिए क्योंकि ये थोड़ा हर बात क्या नहीं हर दिन में होता ना ये क्या वाजवान खा दिया आवाज है तो ये 5-10 वाजवान खा के थोड़ा विंटर के लिए ready हो जाते जैसे वो खाता है रीच वो फिर सोचता है वो खाता है सही फिर वो उसको कुछ नहीं मिलता जंगल में इसलिए हम भी ये देखते हैं कि हाँ चलो ये होना चाहिए। हाँ एक और डिश है शायद आपने खाया होगा हरसा। हाँ जी वो भी रखा है उन्होंने पुराने हमारे बुजुर्ग ताकि सुबह खाए हरसा और उसके बाद नमकीन का चाय का एक कप पिएंगे तो मजा आता है। मैंने देखा है वो प्रोसेस उस हरसा का बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बड़ा रश होता है। तो 19 लाइक उसके बाद छोड़िए अब पिछला जो भी हो गया वो तो हो गया। पास से ये नहीं है पास से सीखना है। मैं आपको भी कहता हूँ अगर जो आपके पास ये है उसको सामने रख के फ्यूचर की तरफ सोचो। यस अगर आप पास को बोलोगे तो फ्यूचर दोगे कोई कामयाबी नहीं है। तो ये मैं ये मंत्र बता रहा हूँ पास को नज़र में रख के फ्यूचर की तरफ देखो। अगर सीधे ही फ्यूचर देखोगे तो लुढ़क जाओगे। जी तो जो मैं बता रहा हूँ कि जो 2019 में ट्रांजिशन हुआ ऑफ स्टेट टू यूनियन टेरिटरी तो उस टाइम पे क्या आपके दिमाग में अब ये ख्याल आया कि अब एमएलए बनने का कोई फायदा नहीं है कि उतनी पावर्स है नहीं अब एमएलए के पास आफ्टर यूनियन टेरिटरी? मैं बड़ा सोचा शायद मैंने जब ये हुआ ये तो बड़ा गैर जमहूरी इसमें न पूछा गया हमसे न किसी स्टेट रजिस्टर से पूछा न किसी ये लोगों की जो राय है उसको नहीं ली गई। 1 साइड फैसला लिया पार्लियामेंट ने 370 किया का तो 35 से किया का तो और ये स्टेट को यूटी बनाया। जब ये नहीं होता यूटी स्टेट बनती है स्टेट यूटी तो रिवर्स किया बनी है बहुत बार। तो मैं तो जेल भी रहा वो तो जेल डिटेंशन वो भी घर पे हो या बाहर हो? नहीं घर पे तो उधर था। शायद लोगों को है कि वहाँ भी कोई ऐसी फैसिलिटी थी कि वो ग्राउंड में जाते हम कमरे में ही रहते। आप कहाँ पे बनते? मैं तो पहले SKC संतूर में और फिर उसके बाद घर में रहा वहाँ से छोड़ के फिर घर में रहा तो उसमें भी टाइम लग गया। लेकिन यह है कि मैं मैंने सोचा कि इस वक्त ज़रूरत है लोगों को अगर मैं घर बैठूं नहीं लड़ूं तो ये अच्छा नहीं है सिग्नल अच्छा नहीं जाएगा कि लड़ना है ज़रूरी। अब लोगों के मसाइल काफ़ी है पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल एस्पेक्ट को इधर छोड़ के जो भी लोगों की मुश्किलात है वो किसको कहेंगे। इसलिए ज़रूरी था ये मैंने फैसला किया मैं लड़ना है जी। तो मेरे लिए ये है कि मैंने लोगों की खिदमत करनी है चाहे असेंबली हो यूटी हो चाहे कुछ हो लेकिन हम तो पब्लिक के नुमाइंदे हैं और हमारे कहने में वज़न है। जो भी ये यूटी की असेंबली हो या असेंबली स्टेटस वापस आ जाए वो असेंबली हो लेकिन हर एक की हिफाजत अपनी है चाहे वो पंचायत हो चाहे वो कॉरपोरेशन हो चाहे DDC हो BDC हो जो जी वहाँ भी फैसले होंगे उनको एहतराम करना होता है एडमिनिस्ट्रेशन को उनको एहतराम करना होता है क्योंकि वो लोग नुमाइंदे क्योंकि जो वहाँ पे इलेक्ट किए गए हैं वो लोगों ने इलेक्ट किए जी। ये नहीं ज़रूरी है कि ये होता है कि जिसको अक्सरियत आएगी वो जीत जाता है जी। लेकिन लड़ना ज़रूरी था। ये लड़ने से ये हम घर में बैठते थे जो लड़ो यूटी का इलेक्शन हम कहेंगे हम नहीं लड़ेंगे वो ठीक नहीं है। अब आगे नमाज़ें आ गई आवाज़ आ गई NC को लोगों ने प्यार से वोट दिया हमारे ऊपर एतमाद किया हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाली हमारे ऊपर अब ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी बिल्कुल। कितनी परसेंटेज में वोट डाला गया ये मामूली बात नहीं है। पहले बहुत कम वोट बाइकआउट होता था बाइकआउट लोग डालना चाहते थे लोग लेकिन वहाँ नज़र रखते थे वहाँ पोलिंग बूथ के 2-4 बंदे कौन आया ये आया फलानी आया शाम को उसको पथराव करते थे शाम को उसको गालियाँ देते को गदार ऐसे वोट डाला लोग डालना चाहते। मैंने पहले दिन कहा शायद किसी मीडिया ने मुझे बोला कि गुल साहब ये ज़्यादा वोट पड़ेंगे आपको नुकसान होगा। मैं नेशनल काउंसिल को ज़्यादा वोट पड़ने से नुकसान नहीं होगा ज़्यादा वोट पड़ने से हमें फ़ायदा होगा कि हमारे लोग हमसे वोट डालना चाहते हैं हमें लेकिन वो घबराहट में प्रेशर में बुद्धू के खौफ से उसके खौफ से नहीं डालते थे लेकिन जब वोट डालेंगे वो NC को डालेंगे। जो अगर आप क्योंकि आप जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है थोड़ी क्लोज रहे हैं क्षेत्र मतलब फोर्स एक तो अगर आप मैं ये बात नहीं कर रहा कि एज ए पॉलिटिशियन वो कैसे थे लेकिन एज ए पर्सन वोटर्स शेर कश्मीर के बारे में वो तो
بہت بڑے لیڈر تھے, اس کے بارے میں بولنا مجھ جیسے لوگوں کے لیے اتنا کیا بولوں, کس آسپیکٹ میں بولوں میں شیخ صاحب کے بارے میں. لیکن مجھے یاد ہے کہ جو میرے فادر تھے وہ ایک فریڈم فائٹر تھے, اس کو جیل بھیجا گیا اور 24 کوڑے اس کو مارے گئے مہاراجا کے دور میں, مہاراجا کے وہ اس کو سزا سنائی گئی. وہ تھا ڈکٹیٹر اینڈ وہاں اس کو مارے گئے. وہ اس کو دکھا رہا تھا میرا باپ مجھے یہاں پہ, وہ ایسی کوڑے نہیں, وہ اس پہ جسم کے اندر جاتے تھے جو مارتے تھے. اب 24 ایک ہی بار میں 24 مارے اس کو. تو پھر جب ماحول گھر میں تھا وہ شیر کشمیر کا ماحول تھا کہ میرا باپ اس میں جب تحریک حریت چل رہی تھی اس میں نیچرلی باتیں ہو رہی تھی یہ, تو میں نے دیکھا نہیں تھا شیر کشمیر کو. لیکن میرے فادر نے ایک فوٹو لگایا تھا وہاں پہ گھر میں, مسلم لیگ میں جب وہ تھے, یا مسلم لیگ کی تو پرانی بات ہے, 31 کی بات میں کہہ رہا ہوں, یہ اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں جب وہ جیل لیا گیا اس کو. تو ہمارے فوٹو میں بچہ رہے کہ شیر کشمیر جیل میں ہے, تو اس نے مجھے دکھایا تھا شیر کشمیر. پھر اس کے بعد مجھے موقع ملا اس کو دیکھنے کا اس میں 75 میں 1975 میں پرسنلی میں نے دیکھا. اور اس سے پہلے وہ ریلیز ہو گئے وہاں جموں سے, تو وہاں وہ گئے تھے میرے فادر جیل کے باہر. اس کو میرا وہ فوٹو بھی تھا, اس میں شیخ صاحب بھی تھے اور شاید اور بھی ہمارے لیڈر کوئی تھا وہاں پہ. 75 میں نے دیکھا. 75 میں ہم چلے گئے وہاں ریسیپشن دینے کے لیے اننت ناگ میں ہمیں پتھراؤ کیا گیا کیونکہ وہ کچھ لوگ تھے وہ اگینسٹ تھے کہ وہی یہ اکارڈ ہو گیا وغیرہ. تو ہم اس کے بعد آئے ہم یہاں سری نگر. پھر جب میں نے اس کو دیکھا میرا وہاں تو سری نگر میں ہم نکل گئے, اننت ناگ سے گاڑیاں لیے تھے, ہم نے چھوٹے لڑکے تھے, ہم نے نوجوان کا ایک وہ ٹولہ رکھا تھا, وہ گئے ریسیپشن کرنے کے لیے شیر کشمیر کو اننت ناگ ڈاک ملے میں. پھر میں نے ان کی صورت دیکھی لال چوک میں ابھی ریڈیو کشمیر کے پاس, لوگوں کا سمندر اور ایسی پرسنالٹی. تو میں نے شیر کشمیر کو دیکھا کہ مجھے ابھی بھی وہ سین یاد آ رہا ہے جب وہ اس کو میں نے دیکھا. اس کے بعد یہ شیر کشمیر کو پھر وہ بیمار ہو گئے, چیف منسٹر بن گئے تو بیمار ہو گئے 77 میں. تو اس دن جب ہم نے الیکشن کیمپین کی, یہ بات کہنی ضروری ہے کہ اس نے مجھے شیر کشمیر, میں نے کہا فاروق صاحب سے, اس کا OMG ہوتا تھا پرائیویٹ سیکرٹری, میں نے کہا یہ بیمار ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں شیر کشمیر کو. اس نے شاید بولا یہ مبارک گل ہے, اتنا اس کا تھا یعنی نام اس کو ذہن میں تھا, یہ مبارک گل ہے, یہ آپ کو ملنا چاہتا ہے. میں گیا اس کو وہاں تو وہ ایسے بڈ پہ اس کمرے میں سویا تھا, کہتے یہ مبارک گل اس کے ساتھی آئے ہیں. تو کہا دیکھا میری طرف, وہ پہلے انٹریکشن تھی اس کو دیکھنے کی. آپ کا پہلا انٹریکشن فیس پھر کمرے میں آفٹر 77 اوکے آفٹر الیکشن 77 میں وہ جیل سے بھی چھوٹ کے آئے. نہیں وہ بیمار تھے, ان کو ہو گیا, لوگوں نے بڑی یہ نیازیں رکھی, بھیڑ مارے گئے, جلوس سے چلتے رہے گاڑیاں, لیکن مجھے موقع ملا. اس کے بعد مجھے موقع ملا, اس نے جب یہ ٹھیک ہو گئے اس نے مادری بہنا سے بولا, یہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گی یہ بات, کہتا ہے یہ جو جوان تھے ان کو میں پارٹی دینا چاہتا ہوں. شیر کشمیر کی حیثیت, اس کا جو کلیبر, اس کی لیڈرشپ, ہم چھوٹے آپ جیسے چھوٹے نوجوان, اس نے ایمپورو گارڈن میں ایک بہت بڑا اعزاز میں, ہمارے اعزاز میں ایک پارٹی دی, جس میں مادری مہربان آ گئی. میں نے اسپیچ کی, بڑے ٹیبل لگے تھے ایمپورو میں, کہتے یہ جوانوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ سب سے خوشی کا دن تھا کہ لیڈر ایکنالج کیا اس نے ایمپورم گارڈن میں مادری برمان کے ساتھ کہ ان لڑکوں نے کام کیا اور مبارک دی ہمیں وہاں ایمپورم گارڈن میں. یہ دوسری دفعہ اس کو ہمیں اور پیار آ گیا. دیکھو لیڈرشپ کیا ہے, کچھ لیڈر ایسے ہوتے ہیں کام کریں گے بھول جاتے ہیں. بیمار تھے وہ, لیکن اس کو پتہ تھا انہوں نے کتنا کام کیا ہمارے آنر میں, ہمارے یہ اس میں
काम को उसने थोड़ा रिकॉग्नाइज किया कि हाँ पार्टी दे दी। उसके बाद बहुत मौके आए, ये पहले बोल रहा हूँ। और फैमिली में भी वो हमारे घर आते थे, क्योंकि वो हमारे फादर महाजरा शुमारी में थे। तो जब भी कोई हज़रत बल का चांदा हो, किसी का वो ये शादी हो, तो आते रहते थे। मुझे एक ये है कि वाक़ा है, मेरा भाई एक छोटा है, उसको टांग में लगी थी। तो वो शेख साहब आ गए, उससे कहा मेरे बाप ने इसको ज़रा करो ऐसे। देखा मैं पीर हूँ, तो क्या छुपाना है ना, ये भी कर कैसा। उसने किया, उसको ऐसे टांग में फूंक भी दिया, उसके वो पास जो टांग में उसको ख़त्म हो गया। इसे ही बोल रहा हूँ मैं। ओके। मेरे दिन एक आदमी आ गया, मैंने कहा, वो कहता है मुझे मिर्गी आ रही है। सच्ची है, ये करिए। कहता है मैं मिर्गी आ रही है। एक आया था गेस्ट, मैंने कहा किसी ने कहा मुझे अगर शेख साहब आपको कुछ करेगा तो आप ठीक हो जाओगे। तो मेरा हमसाया था, मैं मजबूर हो गया। मैंने लगाया ओम जी को टेलीफोन, मैंने कहा मेरा एक गेस्ट है, वो उसको बेचारे को ऐसे डॉक्टर ने छोड़ा है, उसको बीच में ऐसे ऐसे होता है कुछ, तो आप ये करो या इसको टाइम कहो। इसने बोला चलो, वो तो मुझे उसको सिग्नल था कि जब भी मैं आऊँ इसको रोकना नहीं, इसको रोकना नहीं। उसी टाइम पे मुझे टेलीफोन किया ओम जी ने, हेलो मुकुल साहब, ये आपने टाइम मिल गया। मैं गया, उसको बंदे को साथ देखे, वहाँ घर में था, वो अपने घर में रहता था, वो डिड्यूज में छोटा सा कमरा था, वो मैं बैठाया मुझे उधर। जब मैं आया, पर्सनलिटी आएगी अब मेरे आगे, कहता मैं कोई पीर हूँ, आप क्या आप किसको ला देखे, मैं डॉक्टर हूँ क्या? ऐसे बोला हंस के, मैं डॉक्टर हूँ। मैंने कहा इसको अकीदा है, ये कहता है मुझे फ़र्क हो जी, किसी ने बोला इसको। अच्छा, उसको पता था कि मैं क्यों आ रहा हूँ, उसने दावत दिया, उसको उधर से लाया था। उसको पता था मुबारकुल इसलिए मिलना चाहता है, उसे लाया, वो दावत दिया उसको, जिसको मिर्गी आती थी। हाँ, उसको तो बीमार पता नहीं क्या था। हमें पॉलिटिकल नंबर मजबूर हो गया। तो फिर मैं बोला, मुझे वो कहते उसको फ़र्क हो गई, ये और रिकॉर्ड है। और लास्ट लेग में उसको ये चाहत थी कि लोगों के लिए भी कुछ करूं, कि वो ये आज जो पानी मिल रहा है श्रीनगर को रंग दिया उसने, सर्कल रोड मास्टर प्लान, उसने कि उसको पता था ये अब गुर्बत में लोग जा रहे हैं, थोड़ा इनको चाहे अब थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए। उसको लास्ट लेग में ये आया था कि मैं कुछ करूं। 1970 से आपका करियर जो इंटरनेट दिखा रहा है कि स्टार्ट हुआ है 1970 से एज ए काउंसलर। हाँ, एज ए काउंसलर। तो फिर 83 में पहली टर्म आई, फिर 96 में, फिर मैं बढ़ गया 87 में अपर हाउस का मेंबर। हाँ, वो शायद इसमें नहीं है, वो 6 साल रही, विकिपीडिया नहीं दिखाया। वो तो 6 साल, वो तो देन वाज द मेंबर। 93 तक मैं मेंबर था जी। वो पीरियड कैसा था? वो जो मैं बताया, मैं तो निकल गया था 90 में, 89 के लास्ट मंथ में या 90 के जनवरी में मैं चला गया, क्योंकि वो तो वक्त मैं श्रीनगर में था, कभी एक घर में, फिर दूसरे घर में चोरी छुपी था वहाँ पे, कि वहाँ रहा मैं। फिर उसके बाद मैं जम्मू चला गया, फिर वहाँ मेरे बच्चे छोटे थे, उनको स्कूल से एडमिशन कराना था वहाँ जम्मू में। फिर भाई मैंने सबसे पहले जब मैं बना 96 में मेंबर, मैंने पहले शुक्रिया किया जम्मू के लोगों का। मैंने कहा जम्मू के लोगों ने बड़ा प्यार दिया उन बरसों में। जो मेरे पुराने दोस्त थे वो भी मेरे पास आते थे, और थोड़ा काम करना शुरू किया मैंने फिर एज ए रेगुलर, क्योंकि घर को चलाना था, फैमिली को चलाना था। तो उसी में टाइम बीत गया। फिर उमर साहब ने एक बार मुझे स्टेट सेक्रेटरी बनाया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो उसके बाद में अपर हाउस का मेंबर आया। अपर हाउस मेंबर बनते वो 3 तक रहा, तो वो तो था ही नहीं, कोई डिज़ाल्व हाउस था, कुछ नहीं था। वो जी। हकीम साहब, अल्लाह ताला उनको मगफरत करे, हकीम हबीबुल्लाह साहब थे चेयरमैन। कभी उससे बातें होती थी पुराने ज़माने की, वो चिट्ठियाँ लिखता था मुझे, उसकी हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी थी। कोई दामन से मैं बोल रहा हूँ, हकीम हबीबुल्लाह लिखता था पहले, मेरे लिखता था नाम गुल 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 बदीन मुबारक गुल। मेरी चिट्ठियाँ मौजूद थी, लेकिन बदकिस्मती से सैलाब आ गया, मेरा मकान ही डूब गया सैलाब में। 2014 वाला जो वो बैठा था सनवार में,
एक छोटे से मकान में, तो सिक्के पर स्पीकर भी था मैं, लेकिन मैंने ऑप्ट किया वही छोटा मकान। हाँ। मैंने कोई नहीं कहा मुझे बड़ी बिल्डिंग, वो तो डूब गया, उसमें मेरे ये सारे रिकॉर्ड सैलाबुज हो गए, वरना उसकी बड़ी अच्छी लेटर आती थी मुझे बाई पोस्ट, मैं तो खुश होता था। फिर 96 में जीता, फिर 2002 में जीता, फिर 2008 में जीता, फिर 2014 में जीता, अब 2024 में भी जीते हो। तो स्टार्टिंग आउट वो वाला मुबारक गुल जो 90s-70s में पहले पॉलिटिक्स में आया था, को कभी सोचा था कि ऐसा टाइटल लूंगा जिसका मीनिंग गूगल को भी नहीं मैंने पता? कल भी बोला हाउस में, मैंने कहा ये तो इतनी बार जीतना मुश्किल है, इतनी बार मुश्किल से एक बार इतनी, क्योंकि लोगों की उम्मीदें काफ़ी होती हैं, जी जी एक बार जीत के सबों को खुश करना मुमकिन नहीं है। अगर एक फैमिली का हेड भी हो, वो भी अपनी सारी फैमिली को खुश नहीं रख सकता है। जी। इसलिए मैंने एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, लेकिन अल्लाह का करम है कि मुझे और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली। बस स्पीकर मिली मुझे एक, जी वो PDP BJP कोalition में, नहीं अपनी NC कांग्रेस में जी मुझे स्पीकर बनाया, लेकिन 14 में सैलाब की वजह से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। हाँ। क्योंकि मैं हमेशा लोग के साथ रहा, लोगों को जो मसले थे उनको मैं देखता रहा, क्योंकि लोगों की उम्मीदें ज़्यादा वाबस्ता होती है। अगर एक बार बनेंगे आप, दूसरी बार बनेंगे, बढ़ जाती है ज़्यादा, फिर मुश्किल जीना होता, ये जितना होता है, क्योंकि लोग जज करते हैं कि इसने किया कुछ। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैंने जैसे बोला कि मैं फाइटर, ओके मुझे कोई फाइटर में जो 77 में जो फाइटर था वो मैं आज मुबारक के अंदर दिल में वही फाइटर मौजूद है। सो दीजिए। तो मैं चीज़ जब रहता हूँ जहन में वो मैं कर देता हूँ, और लोग को भी मेरे ऊपर विश्वास है कि इसने कोशिश की, ओके इसने कोशिश की, लेकिन इसने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मैं काम नहीं करूँगा, चाहे उसका काम हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो एक वो है, इंसान को नीयत अच्छी होनी चाहिए कि मैं बनूँ। मैंने जब ये फार्म भरा, मैंने एक दुआ की अल्लाह ताला से, मैंने कहा खुदा अगर आप मेरा चाहते हो कि मैं बनूँ, लेकिन मैं ये अपने लिए नहीं बन रहा हूँ, लेकिन लोगों की खिदमत के लिए आज बढ़ रहा हूँ मैं फार्म, मुझे कामयाबी देना। अगर आपको लगा कि मैं नहीं कर सकूँ तो मुझे कामयाबी नहीं देना। ये मैंने पहले दिन फार्म भर के मैं गया, फिर कहाँ गया, मैंने अल्लाह ताला से ही वादा किया कि मेरे दिल में कोई लालच नहीं है कि मैं एक शायद ही एक MLA हूँ सारे सब कॉन्टिनेंट में, जिस जो इतनी बार बना हो, फिर कभी मिनिस्ट्री में नहीं या किसी और अहम जगह नहीं बना हूँ, अपनी जगह खड़ा हूँ एज MLA। अब ये प्रोटीम से भी है, 4 तारीख को पार्टी फैसला करेगी किसको बनाना होगा, लेकिन मैंने ईमानदारी से मैं ये इसमें कोई ये नहीं छोड़ा कि नहीं मैं यहाँ हूँ तो काम कोई चुक जाए, मैं ऐसे ही लग रहा हूँ जैसे मैं पहले भी था। इसलिए मैंने हमेशा यही कहा कि ये जो सारा ऊपर वाले के हाथ में होता है, और मैं हमेशा हर हाल में, हर सूरत में, हर दिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस जगह उसने मैं पहुँचाया, ये अल्लाह का और मेरे वोटरों का जिन्होंने मैं वोट दिया, और मेरी पार्टी का जिन्होंने मुझे इसमें छोड़ा हमेशा लड़ने के लिए, मैंडेट दिया MLA के लिए, क्योंकि MLA ये प्रोटेम स्पीकर बनना मुश्किल है जी। वो तो एक्सपीरियंस के बुनियाद पे वो देते हैं ना प्रोटेम स्पीकर। नहीं वो नहीं, मैं कहा जीत ये नहीं प्रोटेम स्पीकर छोटी बात है, लेकिन जीत फिर आवाम का मैंडेट लेके आना मुश्किल है। ये इसके लिए एक बड़ी सख्त मेहनत की जरूरत है, हार्ड वर्क की जरूरत है। ये इसमें नहीं होगा कि हार्ड वर्क के बगैर ये मुमकिन नहीं है। लोगों के साथ इन टच, और मेरा मुकाबला भी ज़बरदस्त था श्रीनगर में कि बहुत कुछ किया गया स्पेंड मुझे हराने के लिए, मेरे खिलाफ प्रोपगेंडा किया गया, मीडिया में प्रोपगेंडा किया, वो तो सियासत है, वो तो होता है। लेकिन मैंने उन चीज़ों का जवाब दिया था। मैंने कहा जज लोग है, लोग जज है, लोग फैसला करेंगे। लोगों ने आज ये फैसला किया जिस अर्से में 10%, 15%, 20% वोट और 36% वोट पड़े। 36% भी मैं भी जीत गया। अगर 1000 भी पड़ता उसमें भी मैं ही जीता। 100 पड़ता, 1000 नहीं पड़ता। तो मैं ये बता रहा हूँ कि लाइक आप इतने टाइम से पॉलिटिक्स में हैं, तो आपके हिसाब से कश्मीर के फ्यूचर के लिए पीस डेवलपमेंट मेजर ज़रूरी है या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अभी ज़रूरी? नहीं, सबसे पहले पीस ज़रूरत है। जब अमन होगा, जब पीस होगा,
तो काम चलेगा, जी क्योंकि जब ये यहाँ पीस होगा तब यहाँ टूरिस्ट आ जाएंगे, तब यहाँ कोई बड़ी बड़ी ये खोलेंगे, कारखाने खुलेंगे, कोई फैक्ट्री लगाएगा. Nobody will, my dear, invest जहाँ अमन ना हो. एग्जैक्ट. अगर जब अमन होगा फिर इन्वेस्ट करेंगे. अगर आपको जेब में कोई पैसा होगा या तो आप वहाँ खर्च करोगे जहाँ आपको लगेगा कि मेरा पैसा सेफ है, जहाँ पे सिक्योरिटी मिलेगी. ये जो पहले आपको ये अपने आप की सिक्योरिटी है, मैं सेफ हूँ नहीं. ओके. अगर आपको पीछे बंदूक होगा, यहाँ से गोली होगी, उधर से खुदा न खास्ता बम होगा, तो कौन इन्वेस्ट करेगा? ये पीस ज़रूरी है. पीस से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी. जब पीस होगा तब अभी देखें टूरिस्ट आ रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट की बिक रहा है, कुछ नए नए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं. और उमर साहब यंग डायनेमिक हमारे नौजवान हैं, उससे ज़्यादा कौन समझेगा नौजवान की प्रॉब्लम? उसको पता है बेरोज़गारी जो नौजवान है. तो आहिस्ता आहिस्ता अब ये इतने सालों की बर्बादी है. मानो ये 19 से 5 साल 6 साल सेटअप ही ख़त्म हो गया है. ख़त्म हो गया. लोग अब देखिए नौजवान कितने ड्रग इसमें हैं, ड्रग इसमें जा रहे हैं. कितने नौजवान ने खुदकशी की. मैं उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ, ड्रग एडिक्शन के लिए, वो ड्रग एडिक्शन को दूर करने के लिए. ये है कि साधन नहीं. अभी मैं आज एक चैनल का रिपोर्ट देख रहा था मॉर्निंग में आज कि कितने यहाँ लड़कियाँ जो है 40 साल पार हो गई, उनकी शादी नहीं हो रही है. और हमारी समाजी बुराइयाँ भी, बिकॉज ऑफ डाउरी भी होगा या मैच नहीं होगा. ओके. कोई समझता कि कोई मुलाजिम होनी चाहिए, कोई चाहता कोई गरीब घराने की बच्चियाँ ज़्यादा होंगी जिनकी शादी नहीं हुई. इसलिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है. और जो ड्रग्स में जो पोषण आएगी इसमें मीडिया में या पार्लियामेंट में क्वेश्चन के हवाले से, वो भी अलार्मिंग है. और जब तक रोज़गार ना हो, और देखिए हमें अब दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई. आप एक ज़माने में ऐसे एक तार घर में जाते थे, कोई वो देते थे वहाँ सिग्नल, वो 1 महीने के बाद जाता था वहाँ. आज अभी आप मुझे इंट्रो करें, अभी सारी वर्ल्ड देखिए. अभी मोबाइल पे एक क्लिप देखो, मेरे कुछ दोस्त हैं बाहर के मुल्कों में, वो मुझे शाम का आपका फ़ोटो देखा. इतनी फास्ट है. अब तो हमें रियासत को इसी स्पीड में लेना है. जी. वी कांट से दैट विल बी 47 में जाएंगे. ओके. हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इनिशिएटिव्स, मॉडर्न जो चीज़ें हैं अपने जवानों में दिलानी है, ताकि वो राज ताज करे सारे वर्ल्ड में. एक क्वेश्चन क्या रेज होता है मेरा कि अगर मैं आपका टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट, बस लास्ट क्वेश्चन दूंगा, इसके बगैर कुछ नहीं बोलूँगा. तो आपके हिसाब से 370 लाने का सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक तरीका क्या हो सकता है? मैं तो दूसरा बड़ी बेशक जो हमारे से वादे किए गए हैं उनको बाहर करना है. उससे बड़ा कोई चारा नहीं है. इज पार्ट ऑफ दैट. जिस ओरिजिनल ये में था, ये हमारे साथ जो वादे किए गए हैं डिफरेंट लीडर्स में, डिफरेंट टाइम्स में, उसको बहाल करना है. उससे यहाँ होना चाहिए. थैंक यू सर. एक बार इस कैमरा में देख के आपका फीडबैक कैसा इस कैमरा में देख के आपका फीडबैक कैसा रहा? बहुत अच्छा है. मेरे रिसर्च करते हैं, इसे गूगल से भी लिया है, मेरे जो यहाँ किताब है उसमें भी दिया है. सारे क्वेश्चन को पता है मुझे क्या कहना है, लेकिन नॉलेज उनका काफ़ी है. मैं ये दुआ करूँगा ये आगे चले और इसके ये कामयाबी. सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. इसमें इनको बोले कि सब्सक्राइब कीजिए. आज जो इस देखेगा सब्सक्राइब कीजिए इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए. मैंने कुछ हिस्टोरिकल बातें बताई, कुछ पर्सनल बातें बताई, उन मजाक जो भी से क्या मेरे साथ. हमने लेक्चर किया. हमसे मेरा बात है, बात तो नमाज का